اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم را، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر، جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ ہر چیز ایک معین میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں، اور زمین میں مختلف قطعے ہیں جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکہرے تنے والے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اور اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا واقعی عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور یہ لوگ خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلا ان پر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے پیغمبر، بات یہ ہے کہ تم تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ماؤں کے رحم میں جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہ غائب و حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت اونچی۔ تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو، وہ سب اللہ کے علم کے لحاظ سے برابر ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگراں فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے، اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، اور اسی کے روب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بتوں سے
काफिरों के दुआ करने का नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं कि वो भटकती ही फिरती रहे। और वो अल्लाह ही है जिसको आसमानों और ज़मीन की सारी मखलूक़ात सजदा करती हैं, कुछ खुशी से, कुछ मजबूरी से, और उनके साए भी सुबह शाम उसके आगे सजदा रेज होते हैं। आयत सजदा। ए पैगंबर, इन काफिरों से कहो कि वो कौन है जो आसमानों और ज़मीन की परवरिश करता है। कहो कि वो अल्लाह है। कहो कि क्या फिर भी तुमने उसको छोड़कर ऐसे कारसाज बना लिए हैं जिन्हें खुद अपने आप को भी न कोई फ़ायदा पहुंचाने की कुदरत हासिल है न नुकसान पहुंचाने की। कहो कि क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है, या क्या अंधेरियां और रोशनी एक जैसी हो सकती हैं? या इन लोगों ने अल्लाह के ऐसे शरीक माने हुए हैं जिन्होंने कोई चीज़ उसी तरह पैदा की हो जैसे अल्लाह पैदा करता है, और इस वजह से इनको दोनों की तख्लीक एक जैसी मालूम हो रही हो। अगर कोई इस गलत फहमी में मुब्तला है तो उससे कह दो कि सिर्फ अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, और वो तन्हा ही ऐसा है कि उसका इक़्तिदार सब पर हावी है। उसी ने आसमान से पानी बरसाया जिससे नदी नाले अपनी अपनी बिसात के मुताबिक बह पड़े। फिर पानी के रेले ने फूले हुए झाग को ऊपर उठा लिया, और इसी किस्म का झाग उस वक्त भी उठता है जब लोग जेवर या बर्तन बनाने के लिए धातों को आग पर तपाते हैं। अल्लाह हक और बातिल की मिसाल इसी तरह बयान कर रहा है कि दोनों किस्म का जो झाग होता है वो तो बाहर गिरकर ज़ाया हो जाता है, लेकिन वो चीज़ जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है वो ज़मीन में ठहर जाती है। इसी किस्म की तमसीलें हैं जो अल्लाह बयान करता है। भलाई उन्हीं लोगों के हिस्से में है जिन्होंने अपने रब का कहना माना है, और जिन्होंने उसका कहना नहीं माना, अगर उनके पास दुनिया भर की सारी चीज़ें भी होंगी, बल्कि उतनी ही और भी, तो वो क़यामत के दिन अपनी जान बचाने के लिए वो सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। इन लोगों के हिस्से में बुरी तरह का हिसाब है, और इनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जो शख्स ये यकीन रखता हो कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो कुछ नाजिल हुआ है बरहक है, भला वो उस जैसा कैसे हो सकता है जो बिल्कुल अंधा हो। हकीकत यह है कि नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्ल होश रखते हो, यानी वो लोग जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं और मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है, ये लोग उन्हें जोड़े रखते हैं और अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब के बुरे अंजाम से खौफ खाते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की खुशनुदी की खातिर सब्र से काम लिया है और नमाज कायम की है, और हमने उन्हें जो रिज़्क़ अता फरमाया है उसमें से खुफिया भी और एलानिया भी खर्च किया है, और वो बदसलूकी का दिफा हुस्न सलूक से करते हैं। वतन असली में बेहतरीन अंजाम इनका हिस्सा है, यानी हमेशा रहने के लिए वो बागात जिनमें वो खुद भी दाखिल होंगे और उनके बाप दादों, बीवियों और औलाद में से भी जो नेक होंगे वो भी, और उनके इस्तकबाल के लिए फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से ये कहते हुए दाखिल होंगे कि तुमने दुनिया में जो सब्र से काम लिया था उसकी बदौलत अब तुम पर सलामती ही सलामती नाजिल होगी, और तुम्हारे असली वतन में ये तुम्हारा बेहतरीन अंजाम है। और दूसरी तरफ जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद को मजबूती से बांधने के बाद तोड़ते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है उन्हें काट डालते हैं और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, तो ऐसे लोगों के हिस्से में लानत आती है और असली वतन में बुरा अंजाम इन्हीं का है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क में वसअत कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंगी कर देता है। ये काफिर लोग दुनियावी ज़िंदगी पर मगन हैं, हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत इससे ज़्यादा नहीं कि वो मामूली सी पूंजी है। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो ये कहते हैं कि इन पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कह दो कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और अपने रास्ते पर उन्हीं को लाता है जो उसकी तरफ रुजू करें। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं।
याद रखो कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। गरज जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके हिस्से में खुशहाली भी है और बेहतरीन अंजाम भी। ऐ पैगंबर, जिस तरह दूसरे रसूल भेजे गए थे इसी तरह हमने तुम्हें एक ऐसी उम्मत में रसूल बनाकर भेजा है जिससे पहली बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इनके सामने वो किताब पढ़कर सुना दो जो हमने वही के जरिए तुम पर नाजिल की है, और ये लोग उस ज़ात की नाशुक्री कर रहे हैं जो सब पर मेहरबान है। कह दो कि वो मेरा पालने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है और उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। और अगर कोई कुरान ऐसा भी उतरता जिसके ज़रिए पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाते या उसकी बदौलत ज़मीन शक कर दी जाती और उससे दरिया निकल पड़ते या उसके नतीजे में मुर्दों से बात कर ली जाती, तब भी ये लोग ईमान न लाते। हकीकत तो ये है कि तमाम तर इख्तियार अल्लाह का है। क्या फिर भी ईमान वालों ने ये सोचकर अपना ज़हन फारिग नहीं किया कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे ही इंसानों को ज़बरदस्ती राह पे ले आता? और जिन्होंने कुफ्र अपनाया है उन पर तो उनके करतूत की वजह से हमेशा कोई न कोई खड़खड़ाने वाली मुसीबत पड़ती रहती है या उनकी बस्ती के करीब कहीं नाजिल होती रहती है, यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने जो वादा कर रखा है वो आकर पूरा हो जाएगा। यकीन रखो कि अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। और ऐ पैगंबर, हकीकत यह है कि तुमसे पहले पैगंबरों का भी मजाक उड़ाया गया था और ऐसे काफिरों को भी मैंने मोहलत दी थी, मगर कुछ वक्त के बाद मैंने उनको गिरफ्त में ले लिया। अब देख लो कि मेरा अजाब कैसा था। भला बताओ कि एक तरफ वो ज़ात है जो हर शख्स के हर काम की निगरानी कर रही है और दूसरी तरफ इन लोगों ने अल्लाह के साथ शरीक माने हुए हैं। कहो कि ज़रा उन अल्लाह के शरीकों के नाम तो बताओ। अगर कोई नाम लोगे तो क्या अल्लाह को किसी ऐसे वजूद की खबर दोगे जिसका दुनिया भर में अल्लाह को भी पता नहीं है, या खाली ज़बान से ऐसे नाम ले लोगे जिनके पीछे कोई हकीकत नहीं? हकीकत तो ये है कि इन काफिरों को अपनी मक्काराना बातें बड़ी खूबसूरत लगती हैं और इस तरह इनकी हिदायत के रास्ते में रुकावट पैदा हो गई है, और जिसे अल्लाह गुमराही में पड़ा रहने दे उसे कोई राह पर लाने वाला मुयस्सर नहीं आ सकता। ऐसे लोगों के लिए दुनियावी जिंदगी में भी अजाब है और यकीनन आखिरत का अजाब कहीं ज्यादा भारी होगा, और कोई नहीं है जो इन्हें अल्लाह के अजाब से बचा सके। दूसरी तरफ वो जन्नत जिसका मुत्तकी लोगों से वादा किया गया है, उसका हाल ये है कि उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसके फल भी सदाबहार हैं और उसकी छाँव भी। ये अंजाम है उन लोगों का जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, जबकि काफिरों का अंजाम दोज़ख की आग है। और ऐ पैगंबर, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस कलाम से खुश होते हैं जो तुम पर नाजिल किया गया है, और उन्हीं गिरोहों में वो भी हैं जो इसकी बाज़ बातों को मानने से इनकार करते हैं। कह दो कि मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ किसी को खुदाई में शरीक न मानूं। इसी बात की मैं दावत देता हूं और उसी अल्लाह की तरफ मुझे लौट कर जाना है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में एक हुक्मनामा बनाकर नाजिल किया है। और ऐ पैगंबर, तुम्हारे पास जो इल्म आ चुका है, अगर उसके बाद भी तुम इन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे चले तो अल्लाह के मुकाबले में न तुम्हारा कोई मददगार होगा न कोई बचाने वाला। हकीकत यह है कि हमने तुमसे पहले भी बहुत से रसूल भेजे हैं और उन्हें बीवी बच्चे भी अता फरमाए हैं, और किसी रसूल को ये इख्तियार नहीं था कि वो कोई एक आयत भी अल्लाह के हुक्म के बगैर ला सके। हर ज़माने के लिए अलग किताब दी गई है। अल्लाह जिस हुक्म को चाहता है मनसूख कर देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है, और तमाम किताबों की जो असल है वो उसी के पास है। और जिस बात की धमकी हम इन काफिरों को देते हैं, चाहे उसका कोई हिस्सा हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी ही में दिखा दें या उससे पहले ही तुम्हें दुनिया से उठा लें, बहरहाल तुम्हारे जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है और हिसाब लेने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या इन लोगों को ये हकीकत नजर नहीं आई कि हम इनकी जमीन को चारों तरफ से घटाते चले आ रहे हैं
ہر حکم اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی چلی تھی، لیکن چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے، اور کافروں کو عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ اصلی وطن کا نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، نیز ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔